Hi kids, let's do question and answer for our chapter The Storyteller. तो सबसे पहले करते हैं warming up exercises. Number 1. Short stories are many types. Match the type of story in column A with its description in column B. तो column A में जो है stories किस type की होती हैं उनके नाम दिए हुए हैं और column B में जो है उनके description दिए हुए हैं तो उन्हें match करना है. तो यहाँ पे मैंने जो है correct story type जो है वो लिख दिया है. सीरियस एंड एंड्स इन अ ट्रेजेडी वो क्या होती है ट्रैजिक टेल. अनट्रू बट रियलिस्टिक यानी जो है वो सच तो नहीं है बट वो सच जैसी लग रही है बहुत रियलिस्टिक कहानी है उसे क्या कहते हैं फिक्शन. शॉर्ट अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट यानी कोई ऐसी आप किसी को घटना सुनाओ जो बहुत ही हंसी वाली हो तो वो होती है एनेक्डोट. वे वाइसेस एंड फॉली आर रिडिक्यूल्ड ऐसी कहानी है जहाँ पे जो है आप किसी का मजाक बनाओ उसे क्या कहते हैं सटायर. मॉरल बेयरिंग स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स वो क्या होती है फेबल जैसे कि पंचतंत्र. पंचतंत्र क्या है एक फेबल है. हैविंग हिस्टोरिकल बेस कैरेक्टर्स बट मे नॉट बी ट्रू यानी कोई हिस्टोरिकल बेस तो है कोई हिस्ट्री तो अटैच्ड है बट जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो उसे कहते हैं मिथ. हैविंग रिलीजियस बेस एंड अ मैसेज और मॉरल वो क्या होते हैं पैराबल यानी जिसमें जो है आपको कोई मैसेज मिले मॉरल स्टोरीज जो होती हैं. एग्जैजरेटेड कॉमेडी अगर जो है कोई कॉमेडी हो उसे क्या कहते हैं फार्स यानी जो है कोई बहुत बड़ा चढ़ा के जो है कॉमेडी बनाई जाए. हैविंग सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स अ मॉरल फॉर चिल्ड्रन फेरी टेल होती हैं वो. ओरिजिनेटेड इन एशियंट टाइम्स ऑथरशिप अननोन ऐसी कहानियां होती हैं लेजेंड यानी आपको पता नहीं है किसने लिखी है बट ये बरसों से चली आ रही हैं आपको आपके बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं ये कहानियां. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन देयर प्रॉपर फॉर्म तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिए हुए वर्ब्स हैं उनके प्रॉपर फॉर्म यूज करने हैं. तो सही क्या होगा वन नाइट अ मैन हैड अ ड्रीम ही ड्रेम्ड दैट ही वाज वॉकिंग along the beach with God. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to him and the other to God. After the last scene flashed, he looked back at the footprints in the sand. He observed that many times along the path of his life there were only one set of footprints and that it happened at the saddest, most troubled times of his life. He questioned God about it. God, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. So I don't understand why you left me alone when I needed you most. God replied, during your times of trials and sufferings, where you saw only one set of footprints, they were mine, for it was then that I carried you in my arms. Next is questions written on the margin of chapter. Number 1. How many occupants did the compartment have? It had 5 occupants. कौन-कौन था? An aunt, her 2 nieces, her nephew and a bachelor. Why did the aunt have to use the word don't so often? Because the children were restless, loud and inquisitive and she wanted to keep them calm and quiet. वो बहुत ही बेचैन थे बच्चे और बहुत जोर जोर से बोल रहे थे और उन्हें हर चीज जाननी थी इनक्विजिटिव थे यानी वो जो है हर चीज के बारे में जानना चाहते थे और आंटी जो है वो उन्हें शांत रखना चाहती थी इसलिए बार बार मत करो ऐसा बोल रही थी. Question. How did the smaller of the two girls irritate the bachelor? The smaller of the two girls irritated the bachelor by repeating the first line of the song On the Road to Mandalay over and over again in loud voice. To which question from Cyril was Aunt unable to give a reasonable answer? Aunt was unable to give a reasonable answer to Cyril's question. Why is the grass in the other field better? How did the children show their disapproval of their aunt's story? By interrupting her with questions, comments, and criticism, and by showing boredom and indifference. For which 3 values did Bertha win medals? What was exceptional about it? She won medals for obedience, punctuality, and good behavior. This was exceptional because no other child in the town where she lived had as many as 3 medals, which Bertha had. How did the prince reward Bertha? By allowing her to walk in his beautiful park once a week. As no children were ever allowed in it, this was great honor for Bertha. Why did the children approve of the prince's decision? Maybe the children liked animals better than they liked flowers. Besides, they were probably happy that the good Bertha had no flowers she couldn't pick. Hence, they approved of the prince's decision.
Why did Bertha wish she had never come to the park? क्योंकि जब वो पार्क में आई तो उसने एक बड़ा सा भेड़िया देखा था जो उसकी तरफ आ रहा था. She was terribly frightened and wished she had never come to the park. Why was the wolf unable to trace Bertha? The scent of the myrtle was so strong that the wolf could not sniff out where Bertha was hiding. The bushes were also too thick for him to see her. What gave Bertha away and how did she meet her end? The clinking of her medals gave Bertha away. The wolf dashed into the bush in which she was hiding, dragged her out, and devoured her to the last morsel. What impact did the story have on children? The children loved the story and said it was the most beautiful story they had ever heard. It had also kept them quiet for the remainder of the train journey. Why was their aunt annoyed at the bachelor? Their aunt was annoyed at the bachelor because she thought he had spoiled the children with a morbid and improper story. Morbid यानी कोई बहुत ही ऐसी दुखी वाली कहानी जो है, तो उन्हें लग रहा था कि उसने जो है उन्हें बहुत ही दुखद कहानी सुनाई है जिसका एंड इतना बेकार है, जिसमें लड़की मर जाती है, तो ये बहुत ही improper स्टोरी यानी बच्चों के लायक नहीं है. And because she felt outdone by his storytelling skills, और उन्हें ये भी लग रहा था कि इसने इतनी अच्छी कहानी सुना दी कि बच्चे जो है वो इतनी देर से चुप हैं और उन्हें इतनी पसंद आ रही है, तो उन्हें थोड़ा सा जेलसी भी फील हो रही होगी. नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्कशॉप. फ्रॉम द स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फाइंड 4 वर्ड्स दैट बिगिन विद द प्रीफिक्स अन एंड राइट देयर ऑपोजिट्स. तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? अनसिंपैथेटिक, उसका हो जाएगा ऑपोजिट सिंपैथेटिक. अनेबल का एबल, अनएंटरप्राइजिंग का एंटरप्राइजिंग, अनइंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग, अनएक्सपेक्टेड का एक्सपेक्टेड और अनहैप्पी का हैप्पी. Find one example of the following punctuation marks from the story and copy the sentences in which they are used. तो कॉलन जो है वो कहाँ पे यूज हुआ है? वो इस सेंटेंस में हुआ है. ये जो साइन है, ये पंक्चुएशन मार्क, ये है कॉलन. Bertha walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. सेमी कॉलन जो है वो कौन सा साइन हुआ? ये वाला जो है, ये बॉय के बाद जो है, तो वो यहाँ पे यूज हुआ है. Number 3. Read the following pieces from the story and suggest a title for each as shown in the first one. तो ये आपको जो स्टोरी है वो यहाँ से यहाँ तक पढ़नी है और फिर उसके लिए कोई टाइटल लिखना है. तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है, द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड अ डाइवर्जन से लाइकली टू लूज हिज बेट, इसके लिए टाइटल मैंने क्या दिया है? द गर्ल दैट नेवर स्टॉप सिंगिंग, क्योंकि वो लड़की जो है वो कंटिन्यूअसली गाती जा रही थी, राइट? इन अ लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस, टू इट वाज सो स्टूपिड सेड साइरल, a story that nobody likes, क्योंकि किसी को वो स्टोरी पसंद नहीं आई थी. She did all that she was told till must be an extra good child, उसके लिए क्या होगा? The horribly good Bertha. The storyteller paused to let till popular tunes of the day, a day in the park. Bertha was trembling very much till the 3 medals for goodness, तो इसके लिए टाइटल होगा I wish I was in good. Number 4. Write your opinion in your own words. Why do you think the children dislike their aunt's story? क्यों उन्हें आंटी की स्टोरी पसंद नहीं थी? क्योंकि वो थोड़ी डल थी, राइट? अनरियलिस्टिक थी, मॉरलिस्टिक थी, यानी उसमें जो है वो ज्ञान की बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, मॉरल की बातें हो रही हैं, तो बच्चों के लिए वो थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं. उनकी स्टोरी में जो है कोई एडवेंचर नहीं था, कोई ह्यूमर नहीं था, कोई सरप्राइज भी नहीं था, राइट? प्रेडिक्टेबल स्टोरी थी कि ऐसा ही होना था, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है. उसमें दुनिया में यही दिखाया जा रहा था कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा होगा और जो बुरे लोग होंगे उन्हें पनिश किया जाएगा. Why did they appreciate and praise the stranger's story? Because it was exciting, imaginative and ironic. एक्साइटिंग थी, बहुत ही इमेजिनेटिव थी, राइट? और आयरॉनिक थी, मतलब उसमें ऐसा हो रहा था कि जो अच्छा है उसके साथ बुरा हो रहा था. एक्शन था उसमें, फैंटेसी थी, ट्विस्ट भी था, एंड में वो मर जाती है. And it portrays the world as a complex and uncertain place where good people are not always safe and bad people are not always caught. उस कहानी में ऐसा दिखाया जा रहा था कि जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग जो है वो हमेशा सेफ ही हो और बुरे लोगों के साथ बुरा ही हो. The children find the story thrilling and amusing and they enjoy the contrast between the expectations and the outcomes. तो उन्हें जो है ये स्टोरी इसलिए इतनी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इसमें जो है कॉन्ट्रास्ट था, राइट? कि अच्छे के साथ अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ डिफरेंट हो रहा है. Do you think Bertha should have met such a glory end to her life?
I do not think Bertha should have met such a glory end to her life because it is cruel, unfair, and tragic. Bertha is a young, innocent, and kind girl who does not deserve to be attacked, hunted, and devoured by a wolf. Her death is not a result of her own fault or choice, but of a random and unfortunate event. तो उसकी जो मौत थी वो ऐसा नहीं था कि उसने कुछ गलत चूज किया उसकी वजह से हुई, उसकी मौत जो है वो इस वजह से हुई कि थोड़ी उसकी किस्मत ही खराब थी। What did the aunt fail to realize in Bertha's story? वो कौन सी चीज समझ नहीं पाई आंटी उसकी स्टोरी में। वो ये नहीं समझ पाई कि दुनिया जो है वो एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि जैसा होता है वैसा ही होता आएगा, जैसा लिखा है वैसा ही होगा, कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। ऐसा नहीं होता है। और अगर मेडल्स किसी को मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान हमेशा खुश ही रहेगा। मेडल्स का मतलब तो ये हो जाता है कि अब लोग आपसे एक्सपेक्ट और ज्यादा करेंगे। आंटी ये भी नहीं समझ पाई कि बच्चे जो है वो इतने बेवकूफ भी नहीं होते हैं, इतने भोले भी नहीं होते हैं, वो खुद जो है चीजों को समझ भी सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अगर आप उन्हें कोई ऐसी बात बताओगे जो उन्हें सही नहीं लगेगी वो उस पर सवाल भी उठाएंगे, क्योंकि बच्चे इतने भी भोले नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आएगा। What is that one vice which nullifies all virtue that a person has? I think that one vice which nullifies all virtues that a person has is pride. तो एक ऐसी बुराई जो सारी खूबियों को खत्म कर दे, नलिफाई यानी सबको खत्म कर दे, ऐसी कौन सी चीज है? वो है प्राइड। अगर आप अपने आप में कुछ ज्यादा ही अहंकार रखो तो। प्राइड इज अ सिन दैट मेक्स अ पर्सन एरोगेंट, सेल्फिश एंड ब्लाइंड टू देयर ओन फ्लॉज एंड लिमिट्स। प्राइड क्या है? वो एक पाप की तरह है। आपके अंदर अगर इतना घमंड होगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। आप जो है सेल्फिश हो जाओगे और आप अपनी ही कमियों को देख नहीं पाओगे। Pride can corrupt a person's character, judgment, and relationships and can lead to their downfall. Write down 2 or 3 proverbs, axioms that suit the message in Bertha story. तो जो है हमें 3 जो है मुहावरे लिखने हैं जो बर्था की स्टोरी पे फिट बैठते हैं। तो पहला वाला तो है प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। इसका मतलब होता है कि वो लोग जो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हैं वो जो है एंड में फेल ही होते हैं। तो इसलिए कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट या कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं होना चाहिए। आप ये मत समझो कि आप हमेशा सब सही करोगे, सब अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। इतना घमंड नहीं होना चाहिए खुद पे। द बेस्ट लेड प्लान्स ऑफ माइस एंड मैन ऑफन गो ऑरी। इसका मतलब होता है कि अगर जो है आप कोई चीज परफेक्टली प्लान करो वो भी जो है वो खराब हो सकती है, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही सकता है। तो ऐसे मत समझो कि आपने कोई परफेक्ट प्लानिंग कर दी तो भी सब कुछ ठीक ही होगा। फिर भी जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा जो है हमें तैयार रहना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें क्या करना है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो इतनी अट्रैक्टिव लगे जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो और आपके भले के लिए ही हो। Write 3 to 5 sentences about each of the following characters. तो aunt के लिए हम क्या लिखेंगे? Aunt is a middle-aged woman who is traveling with her 3 young nieces and nephew. She is a strict and dull person who tries to keep the children quiet and obedient by telling them a moral story. She is not very creative or knowledgeable, and she often fails to answer the children's curious questions. She is also jealous and annoyed by the bachelor's superior storytelling skills. Bachelor. The bachelor is a young man who's traveling in the same compartment as the aunt and the children. He's a clever and witty person who enjoys entertaining and teasing the children by telling them an ironic story. He's very imaginative and knowledgeable, and he knows how to capture the children's interest and attention. He's also kind and friendly to the children, but sarcastic and rude to the aunt. Cyril. Cyril is the nephew of the aunt and the brother of the 2 girls. He's a lively and inquisitive boy who likes to ask smart and challenging questions. He's not satisfied with the aunt's boring and unrealistic story, and he prefers the bachelor's exciting and imaginative story. Bertha. Bertha is the main character of the bachelor's story. She's a little girl who has won 3 medals for goodness, obedience, and punctuality. She's also naive and unlucky, and she does not realize the danger and the irony of her situation. She's attacked and eaten by a wolf in the park because of her medals. Say whether you agree or disagree. आपको बताना है कि आप ये स्टेटमेंट से जो है सहमत हो या फिर नहीं हो। तो पहला स्टेटमेंट है the children would have behaved well in the train if their aunt had scolded them harshly. I disagree. ऐसा नहीं है। अगर वो उन्हें और ज्यादा डांटती तो भी वो बच्चे वैसे ही बिहेव करते, क्योंकि ऐसा नहीं था, वो बोर तो फिर भी होते। और जितना डांटोगे बच्चे उतना ज्यादा जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं।
द यंगेस्ट चाइल्ड वॉज मोस्ट इरिटेटिंग, डिसएग्री, राइट। वो जो छोटी वाली बच्ची थी वो तो वो लाइन इसलिए बार बार गा रही थी ताकि जो है बच्चों का एंटरटेनमेंट सबका हो जाए, उनका ध्यान भटकाने के लिए गा रही थी। Being a bachelor, the stranger had no patience with children. Disagree, right? क्योंकि वो तो उन्हें कहानी सुना रहा था और बड़े पेशेंस के साथ सुना रहा था। The children showed disinterest even in the bachelor storytelling throughout. I disagree, क्योंकि वो उसकी कहानी में इंटरेस्ट तो ले रहे थे। सिरिल इंटरेस्टेड था कि वो हॉरिबली गुड बर्था है। बर्था वॉज वेरी गुड बट वेरी प्राउड टू। आई एग्री, राइट, क्योंकि वो अच्छी तो थी बट उसमें घमंड भी था। The prince had rare uncommon likes and dislikes. I agree, क्योंकि उसने जो है अपने गार्डन में जो है फूल पत्ते नहीं रखे थे, जानवरों को रखा हुआ था। The wolf could not trace Bertha because she was behind a myrtle bush. I agree. वो उसे नहीं ढूंढ पा रहा था क्योंकि वो उस झाड़ के पीछे थी। The bachelor had narrated an improper story to the children. I disagree. मुझे नहीं लगता ये improper story थी, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्टोरी थी, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा था, उन्हें कुछ अलग सा सुनने को मिल रहा था। Number 7, the storyteller has a story within a story. Search from internet or your library books for other stories which have another story within. List at least 3 to 5 of them. तो आपको ऐसी स्टोरीज की लिस्ट यहाँ पे लिखनी है जिसमें जो है स्टोरी के अंदर स्टोरी हो। तो कौन कौन सी है? अरेबियन नाइट्स है, राइट। आपने जो है अरेबियन नाइट्स के बारे में सुना होगा, उसमें जो है स्टोरी के अंदर स्टोरी है। प्रिंसेस ब्राइड जो है ये बहुत बढ़िया बुक है, इसके ऊपर एक मूवी भी है, अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर देखना। उसमें भी स्टोरी के अंदर बहुत सारी स्टोरी है। फ्रैंकनस्टाइन भी जो है एक ऐसी स्टोरी है जिसमें स्टोरी के अंदर स्टोरीज है। लिस्ट ऑल द वर्ब्स रिलेटेड टू द वर्ब से और टेल फ्रॉम द स्टोरी। आपको वो वर्ब्स लिखने हैं जो से या टेल के से रिलेशन में जो है स्टोरी में यूज हुए हैं। यानी कहीं पे आंटी जो है वो कुछ कहना चाह रही हैं कि शी सेड समथिंग, उसकी जगह कुछ और यूज हो गया वो वर्ड, कि शी एक्सक्लेम्ड और शी सजेस्टेड। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आपको लिखने हैं जो से या टेल के रिलेशन में यूज हुए हैं। और फिर जो है आपको ये भी लिखना है कि वो कहाँ पे यूज हुए हैं, और फिर उनमें से 3 जो है वो दोबारा लिखनी है, वो डायलॉग्स जो है दोबारा लिखने हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, वो हैं एक्सक्लेम्ड है, आस्क्ड है, सेड, प्रोटेस्टेड, सजेस्टेड, परसिस्टेड एंड began। यहाँ पे जो है पैराग्राफ्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे वो स्टोरी में आते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स हैं सेम उन डायलॉग्स के इनडायरेक्ट स्पीच में। Number 9, read The Open Window by H.H. Munro Saki। तो ओपन विंडो जो है H.H. मुनरो की जो है एक स्टोरी है, आपको वो पढ़नी है। तो मैंने जो है यहाँ पे उस स्टोरी का जो है समरी दिया हुआ है, आप अपनी लाइब्रेरी में से जो है ये बुक लेके जो है पूरी बुक पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे उसकी स्टोरी जो है वो शॉर्ट में है। स्टोरी क्या है? The story is about Frampton Nuttall, a nervous man who visits the countryside to cure his anxiety। तो एक आदमी है जिसका नाम है फ्रैम्पटन नटल, वो थोड़ा घबराया हुआ सा इंसान है, तो वो जो है गांव की साइड आता है अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए, यानी उसे ये जो घबराहट वाली जो बीमारी है उसे ठीक करने के लिए वो जो है गांव की साइड आता है। He meets Vera, a 15-year-old girl who tells him a tragic story about her aunt's family। तो वो एक लड़की से मिलता है 15 साल की, जो कि जो है उसे एक बहुत ही दुखद स्टोरी सुनाती है अपनी आंटी की फैमिली के बारे में। Vera says that her aunt's husband and brothers were hunting through an open window 3 years ago, but never returned। वो कहती है कि उसकी आंट के जो हस्बैंड और भाई हैं वो ये खिड़की खुली थी और यहाँ से जो है वो शिकार करने गए थे, बट वो कभी वापस नहीं आए। तो 3 साल पहले शिकार करने गए थे बट वापस नहीं आए। She says that her aunt still keeps the window open hoping that they will come back someday। तो उन्हें कहती है कि उसकी आंटी जो है वो आज भी वो खिड़की खुली रखती हैं इस उम्मीद में कि वो किसी दिन वापस आएंगे। Frampton feels sorry for the aunt, who soon arrives and talks about hunting। Frampton जो है वो दुखी हो जाता है फिर आंटी के बारे में सोच के, और आंटी जो है फिर थोड़ी देर बाद आती हैं और फिर वो जो है शिकार के बारे में बात करने लगती हैं। He notices that she keeps looking at the window and thinks that she is delusional। वो देखता है कि वो बार बार खिड़की की तरफ देख रही है, तो उसे लगता है कि ये कितनी delusional है, यानी ये अभी भी इस भ्रम में जी रही है कि इनके पति और भाई वापस आएंगे 3 साल बाद भी। Suddenly the aunt sees her husband and brothers walking towards the house, alive and well। एकदम से वो देखती है कि उसकी आंटी जो है वो देखती है कि उसके भाई और उसके जो पति हैं जो है वो वापस आ रहे हैं और वो ठीक है, जिंदा है और अच्छी खासी हालत में है और घर वापस आ रहे हैं।
Frampton is shocked and terrified, thinking that they are ghosts. Frampton जो है वो तो एकदम से घबरा जाता है, शॉक में आ जाता है, डर जाता है कि ये तो भूत हैं. He runs away in panic. तो वो जो है वहां से भाग जाता है घबरा के. Veera then tells her aunt and uncle that Frampton ran away because he is afraid of dogs. तो वीरा क्या कहती है अपनी आंटी अंकल से, कहती है कि वो इसलिए भाग गया क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता है. She says that he had traumatic experience with dog in India. उसे बताती है कि उसे जो है इंडिया में कुत्तों के साथ कुछ तो बहुत भयानक एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए वो डरा हुआ रहता है. The story ends with the line romance at short notice was her specialty. तो कहानी जो है इस लाइन के साथ खत्म हो जाती है. तो बेसिकली कहानी में क्या है, वो लड़की थोड़ी शैतान है. वो उस बच्चे को जो है, उस लड़के को जो है ऐसी झूठी कहानी बता रही है कि उसके अंकल और उसके जो वो हैं, अंकल के जो उसकी आंटी के जो भाई हैं, वो जो है शिकार करने गए थे और वापस नहीं आए. वो झूठ बोलती है, ऐसा सच में नहीं था. वो शिकार करने सुबह ही गए थे और शाम को वापस आ जाते हैं. बट वो लड़के को नहीं समझ में आता है, वो उसे लगता है कि ये भूत है जो वापस आ गए हैं, इसलिए वो डर के भाग जाता है. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.